In the last classes, we were doing with which cycle? Carbon cycle and nitrogen cycle, and these two cycles were very important comparatively. Phosphorus cycle and sulfur, it is similar to as it is last one, and then little less. So I said that carbon cycle and nitrogen cycle is in a which kind of cycle? Atmospheric cycle. But today that we are going to see, it is phosphorus cycle. So this is a rock, and then phosphorus cycle is, I said, terrestrial cycle. Which kind of cycle? Phosphorus cycle is terrestrial cycle, in which I said that and then phosphorus exists in rocks. So I said that phosphorus is not in the air, but it is in a phosphorus is in a what? Rock. So by यहाँ पर इसका क्या होता है? Rock is but weathering, ये टूटता है. Then there is erosion, and then transportation, yes, and then it comes into and then depositing along with soil. So depositing along with soil. This phosphorus is depositing, I said that, along with soil, and through the microorganism, a process of oxidation used to take place, and it creates phosphate ion. It creates what? It creates phosphate ions, and this phosphate ions, I said that there is trees are there, and trees having what? Roots. Trees is having what? Roots, and this phosphate is easily, this phosphate cannot be absorbed by, this phosphorus cannot be absorbed by, it is in a simple other form, but it can be easily absorbed in the form of which ions? Phosphate ion. In which form? Phosphate ion. And then you know that the use of phosphate in our body, I said that, or in the plant also, because हम लोग क्या करते हैं, when we used to take C6H12O6, हमारे बॉडी में जितनी भी चीजें जो होंगी कार्बोहाइड्रोजन के फॉर्म में, that is sucrose and all, then they react with the 6 molecule of oxygen, and then I said that they form what is a 6CO2 plus 6H2O plus ATP, and ATP is what? Adenosine triphosphate. Adenosine tri, तो ये phosphate कहाँ से आया? From the what is ना? तो हमारे body में is it required in our body? Yes, it is very much required. Every minute millisecond there is a need of phosphate in our body to release good amount of energy. Understood? So there is an ATP is when I said that adenosine triphosphate. So it is releasing, I said that energy in the form of what I said that phosphate ions. Then it is required in our bones. Yes, somewhere teeth and cartilages
Understood? So it is this phosphate ion come into the what is in a producer. This phosphate ion comes into which? Yes, tell me. Producer level. And in this producer, it is I said that, or this is in a soil, and यहाँ पर there will be, I said, animals. So in the animals, and then I said that in the human beings, this phosphate ion comes, and when they die, again phosphates goes into soil. Yes or no? Again that phosphate goes into soil. So which kind of cycle it is? सॉयल से स्टार्ट हुआ, अर्थ से स्टार्ट हुआ और अर्थ में ही फाइनली आकर क्या हो गया? फिनिश. सो इट इज एन एटमॉस्फेरिक साइकिल और टेरेस्ट्रियल साइकिल. यस, विच साइकिल? सो इट इज एन काइंड ऑफ व्हाट आई सेड दैट टेरेस्ट्रियल साइकिल. अंडरस्टूड? टेरेस्ट्रियल साइकिल. तो कैसे देखा आपने? The phosphates ion come through the weathering, erosion and transportation and deposition, denudation process जिसको कहा जाता है, and then come into the soil. And when it come into the soil, then it becomes through the microorganism, bacterial activity, it converts into through the oxidation process, converts into what? Phosphate ion. And this phosphate ion is absorbed by the what it is? What is in plants, and then these phosphate ions come in our body. Understood? And then in our body it is somewhere in our bones, somewhere in our, I said that cartilages, in our what is releasing energy every moment. It is known as what? Adenosine triphosphates. Clear? Phospholipids and all. So I said that this way we are able to get this in a good amount of what is phosphorus. Lekin this cycle is little disturbing. The cycle is also, as we have seen that it will be comparatively easy, लेकिन आप देखते हैं phosphates are utilized in what? Phosphates कहाँ use होता है? That is in the soap industry. Phosphates are utilized in more in what? Soap industry and fertilizer industry. Yes? तो ये phosphate fertilizer industry से कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? Soil में नहीं जाता है, factories में चला जाता है. और वो मतलब माफियाज के थ्रू सस्ते दामों पे गवर्नमेंट के पास है फर्टिलाइजर, एंड इट इज गोइंग टू व्हाट इज माफियाज के थ्रू इट गोज इनटू द व्हाट इज इंडस्ट्रियल हैब्स के पास जाता है, और वो लोग क्या करते हैं? सोप बनाते हैं. यस और नॉट? तो सोप इंडस्ट्री को कहां से फॉस्फेट्स मिल रहे हैं? ओके, तो पहले वो तो केवल एक आइडिया दे रहा हूं कि यदि हम लोग इसको अच्छे से नहीं रेगुलेट करें, लास्ट ईयर वी स्टार्टेड रेगुलेटिंग और यूरिया. यस, एंड देन यूरिया में हम लोगों ने क्या किया था? नीम कोटेड यूरिया. एंड नहीं तो अदरवाइज वैसे ही वो दूसरे इंडस्ट्री में चला जाता था यूरिया, और फार्मर्स के पास द फार्मर्स आर नॉट एबल टू गेट दैट यूरिया. अब ये फॉस्फेट्स कहां पे आ जा रहा है? यस टेल मी. फॉस्फेट्स आर कमिंग इनटू द सोप इंडस्ट्री, एंड देन सोप से हमारे घर में आता है, एंड थ्रू आवर हाउसेस इट गेट थ्रू द व्हाट इज एन सीवेज, अर्बन वेस्ट, इट गेट इनटू द वाटर बॉडी. कहां जाता है ये? It get into water body. Shall I remove this? I said that it comes into what is phosphate ions comes into, I said that water bodies, and maybe it can be what I said that rivers, or it can be I said that ponds. और कल हम लोगों ने नाइट्रेट्स का देखा था. कल देखा था हम लोगों ने नाइट्रेट्स का. क्या हुआ था? बिकॉज ऑफ दिस इट इज एन न्यूट्रिएंट एंड देयर इज एन इंक्रीज ऑफ व्हाट? अल्गी. सो इसमें पहले हमने क्या बोला? देयर इज एन, आई सेड दैट सपोज 100 एनिमल्स आर लिविंग. कितने एनिमल्स रह रहे थे इस पॉन्ड में या रिवर में? 100 एनिमल्स एंड अदर बायोटाज आर लिविंग. और उनके लिए क्या था? एक डिजॉल्व ऑक्सीजन था. कितना था? वाटर में देयर विल बी डिजॉल्व ऑक्सीजन.
and they have some what is the biological demand of oxygen. तो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा, तो एवरी एनिमल हैज सम डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, एवरी एनिमल हैज सम डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन. तो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा, द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज मोर देन बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन. क्या हमने देखा, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज मोर देन, यस टेल मी, बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन. तो अच्छे से एक्वेटिक इकोसिस्टम वाज रनिंग. यस, एक्वेटिक इकोसिस्टम को कोई दिक्कत होगा, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और डिमांड बाय द बायोटाज आर लेस, तो आराम से एक्वेटिक सिस्टम इज गोइंग ऑन. बट व्हाट हैपेंड, आई सेड दैट आफ्टर सर्टेन पीरियड, आई सेड दैट फॉस्फेट आयन कम इनटू द व्हाट इज ना, थ्रू द सी वेस्ट एंड थ्रू द एग्रीकल्चर. कहां से आया, इट इज कमिंग इनटू द व्हाट इज ना, थ्रू अर्बन वेस्ट. And then what I said that agricultural sector से. Yes, आपने फॉस्फेट आयन कहाँ पे डालते हैं, सॉइल में, एंड थ्रू द सॉइल ट्रांसलोकेट होके जमीन के द्वारा इट कम्स इनटू व्हाट इज ना, रिवर और पॉन्ड. तो इट बिकम्स एन, इट इज एन न्यूट्रिएंट, फॉस्फेट इज एन न्यूट्रिएंट, यस और नो. तब ये क्या बन गया इनके लिए, पार्टी टाइम. एंड बिकॉज ऑफ दिस 2 to 3 times algae has been grow. कितना गुना बढ़ गया algae? I said that now the 2 to 3 times algae has been grown, the large number of algae. अब ये algae का भी क्या होगा, their biological demand of oxygen. Algae will have also their biological demand of oxygen, yes or not? क्योंकि वो जब डिकम्पोज होगा तो किसको यूज करके डिकम्पोज होता है, ऑक्सीजन को. यदि आपसे बोल दिया जाए, कभी कभी आप क्या करते हैं, आप अपने पानी में देखते हैं बहुत बदबू आती है, तो आप ये जान के रखो, इनऑर्गेनिक मटेरियल डज नॉट गिव स्मेल इन द वाटर. जब आपके पास से सप्लाई होकर पानी आता है, देन इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट डज नॉट गिव व्हाट इज ना, विच वन इज गोइंग, विच वन इज ऑर्गेनिक. और ऑर्गेनिक को कैसे तोड़ा जाता है, बाय व्हाट इज ना, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस. विच प्रोसेस वी यूज टू, व्हाट इज ना, वाटर, पॉल्यूटेड वाटर को कैसे, यदि उसमें से मुझे ऑर्गेनिक वेस्ट निकालना है, तो व्हाट द प्रोसेस लोग लेते हैं, दैट इंडस्ट्रियल रीजन, दे व्हाट इट इज डूइंग, ऑक्सीजनेशन. और ऑक्सीजनेशन जाकर वो क्या करता है, बायोटा को क्या करता है, ब्रेक करता है, एंड देन दे हैव बीन डाइड एंड डिकम्पोज, और खत्म हो गया. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इनका डिमांड बढ़ गया, एंड नाउ हमें क्या दिख रहा है, इसका डिकम्पोजिशन के लिए वी नीड व्हाट, ऑक्सीजन. तो अब क्या हो गया, बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बिकम ग्रेटर देन, तो जितनी डिमांड है उससे कम क्या हो गया, ऑक्सीजन अवेलेबल इन द वाटर. बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. तो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, यस टेल मी, एक्वेटिक एनिमल्स को क्या मिलेगा, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड दे विल स्टार्ट डाइंग. एंड इसके वजह से क्या हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. और आपको पिछले क्लासेस में इम्बैलेंस समझा चुका हूं मैं. इट विल लीड टू व्हाट, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. एंड दिस प्रोसेस, जैसे हम लोगों ने नाइट्रेट्स में देखा था, दिस प्रोसेस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, यस, क्लियर. एंड अब ये फॉस्फेट आयन धीरे धीरे, इफ दिस इट इज इन द नॉर्दर्न इंडिया, ये यदि नॉर्दर्न इंडिया में, तो नॉर्दर्न इंडिया में क्या होगा, देयर विल बी फास्ट रिचार्ज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. और ये फॉस्फेट आयन्स कहां जाएगा, टेल मी, एंड इट विल कॉन्टामिनेट ग्राउंड वाटर. अंडरस्टूड, गेटिंग इट. So it is contamination. The another problem it will be, what is happening, contamination of underground water. Underground water. Understood?